can. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And class, today we all are going to continue this chapter number 1 of your history book. Name of your chapter is How, When and Where. Okay, so in our last class we discussed about like how do we know about the about like 250 years ago, what happened 250 years ago, and even what happened 100 years ago. How do we get to know about it? In today's date we have like internet, we have writings, newspapers and everything about it. Okay, so what were the main things through which we will get to know about the history? So there are sources. Okay, these sources are at that time two types of sources were there. I'm talking about the colonial period: official records and service. In our last class we already discussed official records, how governor generals believed in writing, write every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation. Everything has written up, and after the completion of work, they go through the things properly. They study the things, they debated, and how they can improve for the other time. Okay, for them, writing is so much important. Okay, so now there are like first in the early years of the 19th century, uh, calligraphists were there who copied down the letters and memos and writings of the governor generals or important personalities. But after sometimes printing after some time spread of printing was there, so multiple copies of these recorded were printed, and proceedings of each government department started developing uh, their decisions with the help of the printing. Okay, so now our other source is surveys. Now what is the meaning of survey? Survey means it is a kind of research method used for collecting data from a predefined area. ओके, रिसर्च मेथड है, ठीक है, एक रिसर्च मेथड है जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने देखा होगा अभी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, और सारी ये इंफॉर्मेशंस लेते हैं. ठीक है, कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, या फिर आप अभी कोविड के टाइम पे भी काफी सर्वे हुआ था कि कितने लोगों को कोविड हुआ, ऐसे. तो ये क्या होता है, सर्वे होता है. जब आप दिस इज द रिसर्च मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा. यू आर रिसर्चिंग. सो ब्रिटिशर्स, obviously the practice of surveying also become very important under the colonial period, under the British administration. And British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. Britishers का क्या मानना था? They believed that कि we should know the country, we want to administer, we want to administer here, and if we really wanted to effectively administer here, we should know how what is this country. Okay, we should know about the country properly. So by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सी डिटेल्ड सर्वेज होने लग गए थे, कंडक्ट होने लग गए थे. ठीक है, early 19th centuries में in the villages revenue surveys were conducted. Revenue means you can say tax surveys बोल सकते हो कि कौन टैक्स पे कर रहा है, कौन टैक्स पे नहीं कर रहा है, कितना टैक्स पे हो रहा है. तो रेवेन्यू विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे स्टार्ट हो चुका था. टू नो द टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मतलब कि लैंड एरिया कैसा है, हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, एरिड प्लेन है.
तो टोपोग्राफी को जाना उन्होंने, उसके लिए सर्वे स्टार्ट कर दिया। सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? फ्लोरा जितने भी फ्लावर किंगडम है, प्लांट स्पीसीज है, प्लांट किंगडम को हम फ्लोरा बोलते हैं। जितने भी एनिमल किंगडम है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और वो सारे फोना में आते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में जाना कि कौन से एरिया में कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फोना है, ठीक है। दे गेट टू नो अबाउट द लोकल हिस्ट्रीज, कि यहाँ की लोकल हिस्ट्री क्या रही है, ये सारी चीजें। एंड क्रॉपिंग पैटर्न, किस कैसे आप एग्रीकल्चर करते हो, क्रॉपिंग पैटर्न आपका क्या है। तो ये सारी चीजें सर्वे से क्या है ब्रिटिशर्स ने जाना। ओके, एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years, लाइक एवरी 10 years। तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन अराइज नहीं होता, मैम इतनी पॉपुलेशन है, तो मतलब गवर्नमेंट कैसे बताती है कि 35 लाइक इतनी करोड़ जनता है, इतनी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया में राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, हाँ, और चाइना मोस्ट पॉपुलियस कंट्री है, कैसे पता चलता है? we get to know about it with the help of the census। census क्या है आपका? census जो है लाइक इन एवरी ईयर्स क्या होता है, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स होता है, जहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, काउंटिंग होती है कि कितने लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया के हर एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनकी काउंटिंग होती है, उनकी कास्ट क्या है, उनके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं हर 10 साल में, हर 10 years, इन एवरी 10 years दिस काउंटिंग गोज ऑन, ठीक है, जिसे हम सर्वेज बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसस वी आर एबल टू नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, लिटरेट पॉपुलेशन और इलिटरेट पॉपुलेशन के बारे में, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड के बारे में, डेथ रेट के बारे में, ये सारी चीजें हमें सेंसस से पता चलती है। और आपका जो फर्स्ट सेंसस हुआ था आपका एंड ऑफ 19th century, लाइक 1800, आई थिंक 1871 में। लेट मी कंफर्म इट, लेट मी कंफर्म यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 1872, यस, 1872 में जो है आपका फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में। तो और 80 हर 10 साल में क्या है, उसके बाद से सेंसस जो है हमारे इंडिया में हो रहे हैं। सो देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी दूसरे तरीके हैं सर्वेज के, जैसे बॉटनिकल। बॉटनिकल क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होती है उसको हम बॉटनिकल सर्वेज बोलते हैं, कि कैसे कैसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे हैं, कौन से सॉइल में कितने ट्रीज आते हैं, कौन सी सॉइल में कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो बॉटनिकल सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की कितनी ओल्ड आपकी आर्कियोलॉजी है, कौन कौन सी आर्कियोलॉजी है आपके यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, स्पेशली ऑफ देयर ओरिजिन्स, उनके कस्टम्स, उनके बिलीव्स। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। when you study human beings, the study of human beings is known as anthropology। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस, कितना फॉरेस्ट, कितना एरिया फॉरेस्ट में है, वो कौन से एरिया में मतलब वहां पे वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी है, कौन से ट्रीज मतलब जो है डोमिनेंट प्री डोमिनेंट ट्रीज कौन से हैं। एक्सक्यूज मी क्लास। okay, so surveys became important at that time, at the time of britishers, and उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज रोल प्ले किया, जिसके बारे में हमें सर्वेज में हमें काफी चीजें जो है पता भी चली, ठीक है। so this is a figure mentioned in your book, a custard apple 1770s। custard apple आप आई थिंक उसको सीताफल बोलते हैं हिंदी में, कस्टर्ड एप्पल,
ठीक है। तो कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है 1770s के टाइम का। So botanical gardens and natural history museums established by the British collected plant specimens and information about their uses. So many botanical gardens, botanical gardens या botany क्या होती है, study of plants is known as botany, right? So many botanical gardens and natural history museums were established by the Britishers. And why they established these gardens, जैसे आप अगर आप जाओगे शायद आई थिंक एक हमारे बीकानेर में भी एक बॉटनिकल गार्डन, नहीं बीकानेर में नहीं है बट यस आपको दिल्ली में मिल जाएगा और भी बिग सिटीज में आपको बॉटनिकल गार्डन्स देखने को मिलेंगे, ऊटी में है। तो वो एस्टैब्लिश क्यों करते थे? दे एस्टैब्लिश बॉटनिकल गार्डन्स टू कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेंट्स, ठीक है, प्लांट्स को उन्होंने कलेक्ट कर लिया और फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। अब जैसे हमारे हाँ बोलते हैं ना प्लांट्स का ये यूजेस है, तुलसी, तो तुलसी का क्या क्या यूजेस है, तुलसी के ये यूजेस है, ठीक है। इट्स अ गुड, इट्स अ लाइक नीम जो है काफी एंटीसेप्टिक होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक। तो ये सब पता कैसे चलते हैं, ये सब उनपे जब सर्च करते हैं तो पता चलता है ना। तो बॉटनिकल गार्डन्स, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को इसीलिए एस्टैब्लिश किया कि यहाँ के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाए और उनके यूसेस के बारे में स्टडी किया जाए। Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Local artists को जैसे ये जो pictures हैं वो draw करने के लिए बोला जाता था। Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. अब now in present day, like historians like right वो अभी भी ये information like gather करने में लगे हुए हैं कि कॉलोनिज्म के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये जो ड्राइंग्स की क्या जरूरत पड़ती थी और वो ये ऐसी ड्राइंग्स क्यों बनवाते थे, ये अभी भी रिसर्च में चल रहा है, इसका प्रॉपर हमें आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो ये देखो कैसे बॉटनिकल गार्डन्स थे और इनके पिक्चर्स हमें देखने को मिली है। मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832। अब जेम्स प्रिंसेप ने ये ड्राइंग जो है बनाई थी एंड व्हाट इन दिस फिगर व्हाट this figure is telling us, this figure is depicting us the mapping and survey operation, how mapping and survey operation done by the Britishers. Just look at the instruments present here. ये देखो यहाँ पे मैपिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को रखा गया है, ये देखो जस्ट लुक एट दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये जमीन पे पड़े। तो मैपिंग के लिए सर वो सर्वे कर ऑपरेशंस के लिए ये प्रोग्रेस में चल रहा है, सब देख रहे हैं। नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड्स टू एम्फसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। स्पेशली साइंटिफिक नेचर को यहाँ पे जो है एम्फसाइज करने की कोशिश की गई है। ओके, so now your question arises, what official records do not tell? Obviously हमने अभी लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा कि सर्वेज हैं, सर्वेज हो रहा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं और वो हमें बहुत सारी चीजें बताती भी है, ठीक है, कि सेंसस के बारे में, मैपिंग के बारे में, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट कैसे हुआ, कैसे किया जाता था, क्या प्लान्स पॉलिसीज थी, ये सारी चीजें पता चल गई। बट नाउ द रियल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस? सो रिकॉर्ड्स obviously we can get to know a lot, but they tell us what the official thought. इस रिकॉर्ड्स में हमें वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो रियलिटी में जो ब्रिटिशर्स सोचते थे। अगर आपको अभी मैं कुछ लिखने बोलूं तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि कुछ भी लिखोगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे और आपको जो सही लगता है आप वो लिखोगे। मे बी मैं बोलूंगी राइट समथिंग अबाउट यू, तो यू विल राइट ऑल द थिंग्स व्हिच इज गुड इन यू। बहुत ही रेयरली कोई पर्सन होगा जो अपने बारे में बुरा लिखेगा या जो भी उनके वीकनेस है उसके बारे में लिखेगा। नॉर्मली जो है हम जो सोचते हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं, हम उसके बारे में लिखते हैं। सो सेम विद द ब्रिटिशर्स, we get to know more about more from these records, but all those were the official thoughts, ठीक है, ऑफिसर्स जो सोचते थे उसके बारे में लिखा हुआ था। तो जो रियलिटी में जो पीजेंट्स थे, आपके ट्राइबल्स थे, वो क्या सोचते थे, कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन्स क्या सोचते थे,
उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो देयर आर सम अदर सोर्सेस ऑल्सो, ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लिखने का शौक हो, तो आप अपनी डायरी मेंटेन करते हो और आप अपनी डेली लाइफ के बारे में उसमें लिखते हो। तो जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो मेंटेन करते थे डायरीज या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है, उनका पहनावा, तो ये कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो अदर सोर्सेज में डायरीज ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु ट्रैवल अ लॉन्ग वे टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है, एक ऐसा पर्सन एक जो बहुत लंबी यात्रा करता है, ठीक है, एक रिलीजियस प्लेस की, उसको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स की, कितने ट्रैवलर्स आए, कितने पिलग्रिम्स आए, ठीक है, उनका डोनेशन कितना रहा है, कैसा रहा है, उसके हेल्प से हमें पता चलता है। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, कि ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो अपनी खुद की जीवनी, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में जो खुद लिखता है, ठीक है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफीज हमें मिली है, जिससे हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। देयर वर टोटल पॉपुलर बुकलेट्स ऑल्सो, जो लोकल बाजार्स में मिलते थे, उनकी कॉपीज मिली है। न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, सो मेनी न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एट दैट टाइम, प्रिंटिंग के साथ साथ में। तो इश्यूज डिबेट होते थे पब्लिक में, लीडर्स रिफॉर्मर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे, पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट अपने पोएम्स वगैरह जो है या फिर अपनी स्टोरीज जो है वो मेंशन करते थे। तो जिससे हमें काफी कुछ उस टाइम के नेचर के बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है। ऑब्वियसली कोई कुछ लिखता है तो जो नॉर्मली क्या है, हम फोकस किस पे रखते हैं? स्पेशली हम फोकस रखते हैं कि जो हमारी लाइफ में हमारे सामने होता है। तो आप देखोगे जो बहुत सी पोम्स होती हैं, ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ होता है कि जो एक पर्सन पर्टिकुलरली एक पर्सन फील करता है या फिर ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन का जो फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है पोएम्स में, ठीक है। तो ये जो पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, लीडर्स हैं, जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए थे उसमें जो उनकी राइटिंग्स थी, उससे हमें काफी पता चलता था कि ये सारी चीजें हो रही है, ये लोकल पीपल की जो है थॉट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। बट ये सारी चीजें ओनली लिटरेट जो पढ़ लिख सकते थे वो उन्हीं उन्हीं के बारे में हमें पता चला है। ऐसा तो नहीं है कि जो इलिटरेट थे, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनकी लाइफ के बारे में हमें नहीं पता है। सो गेटिंग टू नो अबाउट ट्राइबल एंड पीसेंट इज मोर डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज उनके बारे में ज्यादा कुछ हमारे पास लाइक ज्यादा कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनको उनके बारे में अगर फाइंड आउट करना तो बहुत मुश्किल होती थी। तो इट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क टू नो मोर अबाउट दैम, tribals and peasants. So now just look at this picture. This is the pictures, the rebels of 1857. Rebels, ठीक है, कौन होते हैं rebels? जो ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते, ठीक है, उनको हम rebels बोलते हैं. So these are the rebels of 1857. Images need to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. 1857 में आपका जो फर्स्ट वॉर बोल दो या द ग्रेट वॉर बोल दो, 1857 में हुआ था. We will talk about 1857 the great war in this book, further in this book, ठीक है. जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली जो जंग थी, ठीक है, बड़ी जंग जो मानी जाती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वगैरह भी लड़े थे, ठीक है, वो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तो वो 1857 में हुआ था. तो ये ब्रिटिशर्स की कुछ बुक में ऐसा सीन हमें देखने को मिल जाएगा. ये रिबेलियंस जो थे, ठीक है, उन्होंने ये इमेज प्रोड्यूस की है. द कैप्टन एट द बॉटम सेज म्यूटेनियस सेपॉयज शेयर द लूट. अब ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? जो म्यूटेनियस सेपॉयज हैं, सेपॉयज आर्मी को बोला गया है. जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के नीचे जो आर्मी रहती थी, सोल्जर्स रहते थे ना, उनको सेपॉय बोला गया है. आगे बहुत इलेबोरेटली बताऊंगी ये सब क्या होता है. म्यूटनी कौन होते हैं?
स्पेशली एक सोल्जर के बारे में बोला गया है, ठीक है, जो अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, उनके रूल्स को या फिर उनके डायरेक्शंस को ओबे नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेनियस सेपॉय, ठीक है, रिबेल बोल सकते हो। तो नाउ दिस कैप्टन इज ट्राइंग टू से हियर कि म्यूटेनियस सेपॉय शेयर द लूट, कि ये जो म्यूटनी है, ठीक है, ये सेपॉय है, ये लूट कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स का व्यू पॉइंट है, बट रियलिटी तो कुछ और थी ना। सेपॉयज या फिर जो 1857 में जो वॉर हुई थी वो फ्रीडम के लिए की गई थी, बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या शो कर रहे हैं कि जो सेपॉय हैं वो लूट कर रहे हैं, जो ये लूट रहे हैं। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रिबल्स अपीयर्स एज ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल। अब ब्रिटिशर्स के व्यू पॉइंट से ये जो रिबल्स थे काफी लालची माने जाते थे, बोला जाता था काफी विशियस है, काफी विशियस है ये लोग, ठीक है। विशियस का मतलब क्या होता है, क्रूएल होता है विशियस का मतलब, ठीक है। ब्रूटल मतलब भी यही कि बहुत खूंखार बोलते हो ना, उसको बोलते हैं ब्रूटल, कि बिल्कुल भी उस इनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है, बहुत वायलेंट है, बहुत क्रूएल है। तो ये ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने डिपिक्ट किया। वही अब कॉमन सिटीजन्स का व्यू पॉइंट डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली। ओके, so yeah, thank you so much for joining the class, everybody. Go through the chapter, go through the content, and if you face any problem, do let me know. Okay, we will discuss this, we will discuss your queries. Chalo, bye bye, take care of yourself.